Hello, good morning all of you. Today we are going to start very important topic of modern Indian history और हम देखेंगे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है अपने एग्ज़ाम के लिए फॉर यूपीएससी फॉर अदर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड देन वी विल सी दैट हाउ वी विल प्रोसीड इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कितना टाइम लगेगा हमको, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो पढ़ना है. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं टाइम लाइन that why we are calling it modern Indian history, right? So history is divided basically in three section. If I tell you timeline, right? So first is ancient, second is medieval, and third is modern, right? सो वन थिंग आई वॉन्ट टू मेक क्लैरिफाई दैट कि जो आपको नोट करना होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक. जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको बताऊंगा. दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स, यू विल गेट टू नो. जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करोगे आपको ये सब पता चल जाएगा. जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या है हिस्ट्री का डिवीजन. सो एंशियंट वी कैन से दैट बिगिनिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, जैसे evolution of man started. So how first man came in earth till you can say till 6th or 7th century. Okay, 6th or 7th century. Okay, now first thing I want to make clarify, do you understand the concept of century? Like this encounter many times in our history lesson. जैसे जैसे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे समझ में आएगा. जैसे कि अभी हम कौन से सेंचुरी में हैं, वी आर इन 21st century, राइट. so 21st century but it starts like we are in 2023, right? 2023, 2024, 20 is there but we are calling it 21st century. Same way when I will call 6th century, so all the years would, 500 something. Why it is important? Because sometimes UPSC once it asks question also कि आपको टाइमलाइन नहीं बताएगा, बस बोलेगा 18th century में जो जो हुआ. So you need to understand, ठीक है. 0 to 1 is not counted. That is concept of BC and AD that we will understand later, ठीक है. वो अभी जरूरी नहीं है. So ancient history. Second is medieval history. Ancient history we will cover after modern. Medieval history, that is the beginning of advent of Islam in India. Then Delhi Sultanate, right? Then Mughals came. So that is medieval history. 7 to we can say 1700. 1600 we can 1700. Yeah, advent of European. That is also the part of medieval history, but 1700 history. Modern history basically starts from the fall of Mughals. 1707. Yeah. Why 1707? Aurangzeb died. Exactly. And why Aurangzeb was important? That we He will. was one of the last. Last or not, but he was. Mughal. Yeah. That emergence of regional kingdoms happened. Exactly. Right. Mughal till 1947. Till we got independence, right? And after that post-independence history is there, and then we have world history, right? So this is the classification, general classification, and this classification was given by Britishers, right? When they came here in India, they wanted to study Indian culture, Indian history, so they just wanted to simplify, okay? कि उनको कुछ ऐसा चीज़ पता चल जाए कि classification simplify हो जाए. तो ये है, but we follow this also. जब modern history आई से तो मॉडर्न हिस्ट्री में फिर 1707 के बाद होता है. यूपीएससी में क्या सिलेबस है दैट आई विल टेल यू, ठीक. तो ये हो गया टाइमलाइन अपना, जिसमें हमने सबसे पहले टाइमलाइन देखा. नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट? इम्पोर्टेंस, राइट. वी विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री फॉर आवर एग्जामिनेशन. Importance of modern Indian history. So let me tell you first of all importance for UPSC, ठीक है. उसके बाद अदर एग्जाम के लिए पढ़ेंगे हम. UPSC के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? So UPSC we all know 3 stages are there: prelims, mains and then interview, right? So in prelims
दिस हिस्ट्री कंप्राइजेस द कोर पार्ट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, कोर पार्ट में क्यों बोल रहा हूँ आपको, प्रीलिम्स में बेसिकली 7 सब्जेक्ट्स को हम कोर सब्जेक्ट्स बोलेंगे. कोर सब्जेक्ट्स, राइट. कोर सब्जेक्ट्स में सबसे पहले हिस्ट्री, जियोग्राफी, देन पॉलिटी, राइट, देन इकोनॉमिक्स, then science and tech, environment and ecology, and then finally this art and culture, right? Art and culture. This is core, also known as static part. And then we have current affairs. You are preparing for UPSC, right? UPPCS. How? So CPPCS exams. हाँ, so वो भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा. करंट अफेयर्स उसके बाद आता है. तो जो पेपर रेडी होता है, बी इट यूपीएससी और बी इट यूपीपीएससी, पेपर जो रेडी होता है वो इन्हीं इस 8 एरिया से आता है, राइट. जिसमें अगर आप स्टेट पीसीएस का कर लेते हैं अगर इंक्लूड, तो देन स्टेट स्पेसिफिक, राइट, स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आती है. अब दीज आर द सब्जेक्ट्स विच यू हैव टू रीड इट एनी हाउ. आपको पढ़ना ही पढ़ना है, यू कांट स्किप. either you preparing for UPSC or state PCS or any other one day एग्जाम. ये कोर सब्जेक्ट बैकबोन है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, राइट. अब इम्पोर्टेंस अगर हम हिस्ट्री का देखते हैं तो हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल तीनों आता है, बट मॉडर्न हिस्ट्री का है तो यू कांट से, अगर हम यूपीएससी के 4-5 साल की बात करें तो क्वेश्चंस आर 4-5 क्वेश्चंस ही आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, बट यू कांट से दैट इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. इट इज़ द पार्ट ऑफ कोर सब्जेक्ट्स. नेक्स्ट टाइम हो सकता है 20 क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है. ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में, स्टेट पीसीएस में आप ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट यू विल एक्सपेक्ट फ्रॉम हिस्ट्री सेक्शन एंड मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है. ये हो गया प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंस. कोई भी एग्जाम हो, वन डे एग्जाम में भी हिस्ट्री होती है और फिर मतलब स्टेट स्पेसिफिक में भी होता है, राइट. तो प्रीलिम्स के लिए इसका इंपॉर्टेंस ये है कि दिस इज द पार्ट ऑफ कोर सिलेबस एंड ऑल्सो बैकबोन ऑफ द एनी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. नेक्स्ट होता है मेंस. अच्छा, और प्रीलिम्स के लिए सिलेबस क्या है हिस्ट्री का, तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो विच आई टोल्ड यू 1757 से मतलब 1707 से, फॉल ऑफ मुगल से till 1947. So all the important events we have to cover, all the personalities, events, places, ये जो भी हुआ है सब हमको cover करना है. That is our factual part. Then comes the mains. So in mains, if I talk to UPSC, talk about UPSC में है directly syllabus mention है, events from 18th century ना, ऐसे syllabus starting from mid of 17th century, so which comes from 1757. Plassey. हाँ, 1757 प्लासी तो हुआ था, लेकिन ये यूपीएससी वाले मतलब 1700 से भी पूछ लेते हैं, राइट. 1750 वीकेंड से यहाँ से 1947 तक, ठीक है. तो ये मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेसिफिकली मेंशन है यूपीएससी के. यूपीपीएससी में वी विल सी, है ना, कि क्या है, एक बार हम सिलेबस देख लेंगे. तो ये डिफरेंस हो गया कि सिलेबस का क्या है. अब मैं बताता हूँ अप्रोच में डिफरेंस. अप्रोच एंड व्हाट वी विल फॉलो. डिफरेंस इन अप्रोच. वी हैव सीन दैट व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट इज डिफरेंस इन सिलेबस. तो अप्रोच में लेट्स से यूपीएससी और इसको मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स, ओके. यूपीएससी प्रीलिम्स एंड हियर मेंस. And nowadays UPPCS is also following UPSC, so it's almost same. So in prelims you will get in state PCS factual kind of information. Factual. For example, who was the president in Surat session of 1907. Okay, this kind of information. Surat session, you know, the importance. Surat split happened in 1907, right? So these kind of information can be asked in where state PCS examination. Okay, but in UPSC
the level might increase. Sometimes question can be factual also, but level might increase also. Or like requiring conceptual clarity. हाँ, exactly, conceptual clarity. For example, one question was asked in 2015 that who was the first woman, first Indian woman president of INC, right? Indian National Congress. The question was not like that. There was one statement है ना कि she was the first statement, जैसे UPSC में आता है, बट मैं बता रहा हूँ कि कैसे थोड़ा डिटेल में होता है. तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहला वुमेन प्रेसिडेंट कौन था, वॉज शी इंडियन और नॉट, एंड देन हु वॉज सेकेंड, शी वॉज इंडियन और नॉट. तो जैसे सबसे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट वॉज एनी बेसेंट, Annie Besant, but she is not Indian, right? Then who was first? Sarojini Naidu, right? She became in 1924, right? Indian National. These kind of question comes in UPSC prelims. Now in mains UPSC, a lot of conceptual clarity is required. Analytics is required. जैसे कि हम अगर पूरा modern history पढ़ लेंगे, we will know all the details, events, everything, okay? Starting from 1707 till 1947, you are fully aware about everything. But the question will come like कि क्या होता अगर महात्मा गांधी पूरे मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते. So no book is talking about this. That you have to articulate by yourself कि आपका एनालिसिस क्या कहता है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में. तो इन दिस वे वी हैव टू अंडरस्टैंड. मतलब मेंस में वाई के बारे में पूछता है, एनालिटिक्स पूछता है कि एनालिसिस क्या है आपका. जैसे कि वी विल टुडे स्टार्ट विथ एडवेंट ऑफ यूरोपियन. सो फर्स्ट क्वेश्चन वी नीड टू आस्क व्हाई यूरोपियंस आर कमिंग इन इंडिया. ओके, यूरोपियन केम, एवरीबडी नो, रिसोर्स सबको पता है, लुसेंट से लोग ने रट के बैठे. बट यूपीएससी ऐसा नहीं चाहता. वो चाहता है कि वाई यूरोपियन केम, वाई दे केम इन 1560, 1590, 1498. ओके, ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद 1498 इंग्लिश को आने में 100 साल लग गए. क्यों? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में 64 ईयर का डिफरेंस क्यों है? तो आपको ऐसे पढ़ना होगा, right? So this is the approach of means, analytical, okay? ये स्पेलिंग सही कर लेना आप लोग. Analytical approach is there, which will come by frequent reading. जितना आप पढ़ोगे, जितना डिस्कस करोगे, है ना, उसको उसमें रहता है. फिर आपका खुद का एनालिसिस होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, then it will come. Right? And UPPCS में भी you can expect same kind of level. हाँ, right? तो ये हो गया अपना approach. अब next क्या है? Approach we have seen. Then how to read. This is very important. How to read modern history or history for that matter. क्योंकि history we find it very boring. Right? You don't find it boring? It's my favorite. Oh, that's great then. For others, it sometimes people find it very boring, but it is not very boring. अगर history को आप अच्छे से पढ़ोगे ना, history is very live subject, right? Boring ये इसलिए लगता है कि factual चीज़ें होती हैं और हमारा inclination नहीं रहता. We are generally from science background, तो हिस्ट्री हमने उतना पढ़ा नहीं होता है. अदरवाइज आप देखोगे कि हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. मैं आपको बताता चलूँगा कि कैसे, कि व्हाट आर इवेंट्स हैपनिंग टुडे. इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड यू आर अवेयर अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो आपको लगेगा यार ये तो ऐसे ही होता था उस टाइम पे भी, ये तो बिल्कुल वैसे ही चीज़ें हो रही हैं, राइट? और इतना हम मोटिवेशन ले सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट से. ठीक है, जैसे मैं गांधी की बात करूँ आपको, गांधी जी. So you will see when you will read about him and events तो ठीक है कवर करेंगे, but you will see the what kind of person he was. इतना determination, इतने adversities के बाद भी उन्होंने ऐसा किया. and what is the relevance of Gandhi now?
ना, डू वी हैव एनी पर्सनैलिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक गांधी, तो वो आप हिस्ट्री से आप कंपेयर करोगे। कोई वो होता है, मान लीजिए फार्मर्स मूवमेंट था, राइट, फार्मर्स मूवमेंट, यू विल सी दैट हियर अ गवर्नमेंट इज देयर अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, अ पर्टिकुलर सेगमेंट इज प्रोटेस्टिंग, राइट। सो आप जब बाकी प्रोटेस्ट देखोगे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो वो भी रहेगा कि उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करते थे, तो सिमिलैरिटीज ड्रॉ करना आप स्टार्ट कर दोगे, राइट। सो दैट्स व्हाई हिस्ट्री इज़ वेरी लाइवली सब्जेक्ट, बट हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे पढ़ना है। ये तो चलो ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रीड इन दैट वे, बट फॉर एग्जामिनेशन हाउ टू रीड, राइट। तो सबसे पहले तो रिसोर्स मैं आपको बता देता हूँ, रिसोर्स क्या हो, ठीक। तो हिस्ट्री में व्हाट वी विल फॉलो, सबसे पहले कि हमको एक बुक पकड़ना है, उस बुक को एक बार पढ़ना है, राइट, रीड इट विदाउट मेकिंग एनी नोट्स, नो नोट्स, राइट, कोई नोट्स आपको नहीं बनाना है। तो वो बुक कौन सी होगी, उस बुक को आप बहुत सारी है मार्केट में, एक तो स्पेक्ट्रम है, एंड देन विपिन चंद्र, and before that I would say NCERTs, right. So preferred book is Spectrum, people prefer Spectrum, but I would say not to choose Spectrum. Why? क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इफ़ यू डू, इतनी मोटी स्पेक्ट्रम हो चुकी है आज के डेट में, अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। हिस्ट्री को हमको इतना वेटेज नहीं देना है। तो बहुत ही पहले 2015-16 में पतली से स्पेक्ट्रम आती थी, दैट वाज फाइन, बट नाउ इट इज स्पेक्ट्रम इज वेरी हैवी, राइट। सो older one will work? yeah, it will work, but better than older one is Bipin Chandra. It's a very good book for competitive history, right, if you are reading for competitive examination. और भी बुक है, शेखर बंदोपाध्याय, ग्रोवर्स एंड Grovers, Plassey to Partition, and then India Before Partition, but we don't have to read that. Bipin Chandra जो Both the books. India Before Independence, After Independence. No, I am talking about modern Indian history. So here you can refer Bipin Chandra, not thicker one. Okay, एक बिपिन चंद्रा की Blue color की जो आती है। हाँ, ब्लू अब शायद चेंज हो गया होगा कलर, ओके, वो है, वो 12th की NCERT का ही पार्ट है बेसिकली। दिस इज द NCERT ऑफ क्लास 12th, बिपिन चंद्रा, तो वो आपको पढ़ना है। और NCERTs में जो क्लासिफिकेशन होता है, न्यू वर्सेस ओल्ड, राइट, न्यू एंड ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड। तो ओल्ड में अभी नहीं, बस न्यू NCERT आपको पढ़ना है, ठीक है, 6 to 8, उसके बाद फिर 11th 12th, 9th नहीं पढ़ना। 9th वर्ल्ड हिस्ट्री है बेसिकली, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे 6 to 8। 6 to 8 में भी एंशिएंट मेडिवल सब मिक्स्ड है। जैसे चार्टर स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें, ये नेशनलिज्म इन इंडिया है 10th में, वो पढ़ना है उसके, वो एक बार पढ़ सकते हैं NCERT। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो अभी NCERT भी मत पढ़ो, यू स्टार्ट विथ क्लास 12th NCERT विच इज बिपिन चंद्रा, ओके, एंड देन वी विल गो थ्रू, मतलब हम क्लास में जो चल रहा होगा उसको हम पढ़ेंगे ही, देन यू कैन रीड NCERT सो दैट you don't miss any factual information which can be asked in the examination. For understanding purpose, 12th NCERT book is enough. Okay, it is enough, and then we will discuss everything in our classroom also, right? Then because here what is the problem in new NCERT, you won't understand the timeline. Okay, they have started randomly, right? So that's why up 6, 7 अभी New also is a problem now because of the post rationalization of the syllabus and pre rationalization of the syllabus, so they have updated further. That is also there, but not very much changes, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है उसमें, वो हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन को इट वोंट इम्पैक्ट, राइट। तो ये है, रिसोर्स की बात करते हैं, तो बस आपको इसके लिए सिर्फ 12th NCERT पढ़ लो, दैट इज इनफ, राइट, बट यू हैव टू रीड मल्टीपल टाइम्स। फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग में जस्ट रीड इट, अंडरस्टैंड
दैट व्हाट हैपेंड इन अवर इंडियन हिस्ट्री, इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए, राइट। फिर नोट्स तो हम क्लास में बताते ही रहेंगे। देन इफ यू फील दैट दिस पार्ट आई एम हैविंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग, होगा आपको कुछ होगा, लाइक एक्ट्स यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रहेंड no matter how much you try, okay, acts Easy, they're not possible. Like for me, it's very difficult to learn them. acts Understanding na is a separate thing, but learning them is a challenge. acts I tend to mix everything up. yeah that we will try to simplify that, but acts हो गया और भी move जैसे कि वो social reform movement sometimes you find difficult to understand, difficult to remember, so जो भी पार्ट आपको लगे उसका नोट्स later on बना सकते हो आप, ओके। नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है कैसे है वो आप बना सकते हो, बट इनिशियली आप फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद सेकेंड रीडिंग, देन थर्ड रीडिंग, वो आपको करते चलना है, राइट। सो दिस विल बी अवर अप्रोच फॉर रीडिंग हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री यू कांट मग अप, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू जस्ट रिवाइज इट, जिससे कि आपको इवेंट्स, क्रोनोलॉजी, ये सारी चीज़ें पता हो। देन आफ्टर दैट मैं आपको और बताऊंगा कि टेस्ट के थ्रू हम कैसे हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर अप्रोच, ठीक है, हाउ टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट, राइट। इसके अलावा कोई डाउट हो आपको तो बताओ कुछ हिस्ट्री में, अभी तक कोई डाउट नहीं है? तो लेट्स स्टार्ट देन। अभी अच्छा ये भी एक डिस्कस कर लेते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, राइट, कितने लेक्चर्स लगेंगे, क्या क्या होगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ओके। उसके बाद वी विल सी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, दैट इज राइज ऑफ रीजनल पावर। Then we will see policies of Britishers, right? Here comes like their administrative policy, judiciary policy, okay, economic policies, and then acts also. It will come in this section. And after that, we'll see rise of nationalism in India. Rise of nationalism in phase manner, like first phase from 1885. What happened in 1885? Congress. Yeah, till 1905. Okay, that is still Swadeshi movement. Then 1905 till let's say 1918. Then arrival of Gandhian phase, right, and then finally independence of India. So rise of nationalism. So this will be our flow in very short manner, right? कि पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे, पॉलिसीज देखेंगे, देन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन फेज वाइज मैनर। यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया, बट इट्स अ लेंदी पार्ट। जहाँ पे सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो आपको लगेगा वो यहाँ तक है। जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म से पहले की जो चीज़ें हैं वो यू माइट फाइंड इट डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि नेम्स हैं, जगह हैं, बहुत, जैसे इंडो कार्नेटिक वॉर है, एंग्लो मैसूर, फ्रेंच एंग्लो मैसूर वॉर है, तो उसमें बहुत नाम वगैरह ये सब याद रखना पड़ता है, कौन किसके साथ है, तो यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट। फ्रॉम दिस सेक्शन राइज ऑफ नेशनलिज्म, यहाँ से it's a very straightforward that there is a concept that we are fighting against Britishers, and what measures we are following, or our leaders, founding fathers or forefathers are following, that we have to understand. Okay, how Gandhi came, what change he brought, what are the movements run by Gandhis, okay, what was the features of those movements, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे, right? सो ये हमारा पूरा फ्लो रहेगा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। ओके, सो एनी डाउट सो फार? नो डाउट। अप्रॉक्सीमेटली हम मतलब कितना टारगेट करके चलेंगे, मतलब देखो, अगर हम पूरा यूपीएससी के अप्रोच से पढ़ते हैं, राइट, सो इसमें एटलीस्ट 30 लेक्चर्स तो लग ही जाते हैं, राइट, 30+ आई वुड से 30+ लेक्चर्स। बट देखेंगे कितना टाइम लगता है ना, डिपेंडिंग ऑन आवर लर्निंग स्पीड, क्या चीज़ समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है।
So this is the idea, right? And can we say that the policies of British ये political history का भी part हो जाएंगे? Like जैसे acts जो है सारे. नहीं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऐसा तो कुछ नहीं, वो आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑप्शनल, उस पर पॉलिटिकल हिस्ट्री, इकोनॉमिकल हिस्ट्री और ये सब है. जीएस में जनरल स्टडीज़ में हमको बड़े स्टेट पॉलिटी में हमारे शुरू के जो वो होते हैं एक्ट्स वाला बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें भी ये चीज़ कवर अप. हाँ, यू कैन से इट कैन बी कवर्ड अप इन पॉलिटी, है ना. पॉलिटी का पार्ट है डेफिनेटली. यहाँ पे थोड़ा वही है बेसिकली, बट वहाँ पे हमको कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या चेंज हो रहा है, वी हैव टू एम्फेसिस दैट व्हेन वी आर रीडिंग पॉलिटी हियर. उस जो एक्ट्स आ रहे हैं उसके कारण हिस्ट्री में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ना, वी विल सी हियर. बट फीचर्स तो सेम ही रहेंगे ऑब्वियसली, राइट. सो लेट्स स्टार्ट टॉपिक ऑफ द डे. ओके, सो दिस इज वेरी फैक्चुअल टॉपिक. इसमें ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं. एडवेंट ऑफ यूरोपियन, कौन आया, कैसे आया, क्यों आया, कौन था, वो हमको समझना है, राइट. तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, राइट. सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम वेयर पीपल आर कमिंग. यूरोपियंस आर कमिंग, वाई दे आर कमिंग वी विल सी, बट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, राइट. सो this is India, right? And this part this part this is the map of the world, fine. So this is West Indies. It is also known as West Indies till today also. अभी भी इसको हम वेस्ट इंडीज ही बोलते हैं ना, इस सेक्शन को West Indies. Yeah, exactly, right. And this is East Indies, right. And this is India. And Europeans, this is Europe, right. Europeans are coming from here to East Indies, not basically India, but they are coming to East Indies. Why? Because they have heard that this is a very fertile means very important region, right. important for spices, mainly तो spice के लिए वो लोग आ रहे थे. वहाँ पे क्या रीज़न था spice का मैं आपको बताऊँगा. एंड from here they are coming. तो सबसे पहले पोर्चुगल आए, ठीक है. पोर्चुगल क्यों आए, we will study. So ये है. अब देखो, आप ये चीज़ देखो, they can come from here to directly here also. They choose this route. This route is known as केप ऑफ गुड होप, है ना. केप ऑफ यहाँ पे एक जगह है, केप ऑफ, हाँ. तो वहाँ से ये लोग आए. रीजन बीइंग दिस एरिया, दिस लैंड रूट. अच्छा, बिफोर यूरोपियन केम टू इंडिया और ईस्ट इंडीज, वी हैड आवर रिलेशन विद द वर्ल्ड ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक दे आर कमिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है. जैसे ओल्ड सिल्क रूट यहाँ से था, ये रूट हमेशा से पहले से था, अरब्स के साथ ट्रेड होता था. इफ़ यू विल रीड दैट व्हाट हड़प्पन सिविलाइजेशन, देन ऑल्सो यू कैन फाइंड दे हैड देयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप. एग्जैक्टली, ईरान वगैरह से, मेसोपोटामिया से, ठीक है. तो वी हैड रिलेशन विद द आउटर वर्ल्ड प्रीवियसली ऑल्सो. बट फिर ये लोग यहाँ से क्यों नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये जो रूट था, ये वाला और ये, तो ये अरब ट्रेडर्स के कंट्रोल में था. ये मेडिटेरेनियन सी बड़े. एग्जैक्टली, मेडिटेरेनियन सी वाज कंट्रोल्ड बाय अरब ट्रेडर्स एंड दे वर आस्किंग फॉर अ लॉट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल्सो along with taxes there was problem of piracy, looting and all these things. So to avoid that they followed this route, Cape of Good Hope, right. So ये एक रीज़न था. अब ये लोग आ क्यों रहे थे यूरोपियंस, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक, यूरोपियंस आ क्यों रहे थे, तो इसको अगर मैं आपको आज की एनालॉजी दूं, ठीक है, कि क्यों आ रहे हैं, तो इट्स लाइक यू अंडरस्टैंड दैट नाउ इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया. एवरीबडी इज स्टार्टिंग स्टार्टअप. वाई? बिकॉज दे आर सीइंग सम अपॉर्चुनिटीज़ कि ये सेक्शन है, हियर वी कैन वर्क, राइट. एक प्रॉब्लम है, वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम हियर. ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को दिखती है. तो आप ये समझो कि उस टाइम का ये स्टार्टअप था, ठीक है. एरा ऑफ एडवेंचरस
एडवेंचर था, है ना। लोगों को क्या, इनको यूरोपियंस थे, इन्होंने नवल सुप्रीमेसी हासिल कर दी थी। नवल सुप्रीमेसी मीन्स दे हैव बिकम वेरी पावरफुल इन sea making and voyage and all those things, right? So they are becoming naval powers. Obviously it was the problem of that time, है ना। वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है एंड लैंड रूट इज नॉट डेवलप्ड, ऐसा रेलवे वगैरह तो है नहीं, तो दे हैड टू ट्रैवर्स व्हाट ऑल द सी। सो फॉर दैट दे हैव टू बिकम वेरी गुड इन naval thing, sea making, navigation and all. So they became good. So at that point of time, you know, their rulers started funding, ना। जैसे अभी क्या इन्वेस्टर्स फंड करते हैं, तो उस टाइम उनके रूलर्स फंड करने की चालू कर दिए इसको, मर्चेंट्स को ना। their rulers started funding, okay, you go and find new places, new geographical area. So this was the age of discovery, जो 15th century थी, starting of 15th century, known as age of discovery. So that in that manner, this Columbus discovered America, and Vasco da Gama discovered what? India. India was already there, but he discovered the sea route to India. Sea route to India also, and came जो इंडिया था वो थोड़ा समझ लो आपकी प्रोमिनेंस, या एक लोगों को पता चला कि इंडिया भी है, राइट। सो दिस वाज द रीजन, एज ऑफ डिस्कवरी। गवर्नमेंट वर फाइनेंसिंग देम, ट्रेडर्स को, गिल्ड ऑफ जो ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को, ठीक है। और वो फिर जाते थे, एंड इट वाज नॉट वेरी इजी टू ट्रैवर्स थ्रू सी, है ना। आप देखोगे कि बहुत जो तूफान वगैरह बोलते हैं वो सब आते थे, है ना, बट एनी हाउ दे केम इन इंडिया, राइट। सो रूट इज क्लियर, व्हाई दे they followed this route, that is also clear. Any doubt? Now this is the order, which is very important, right? Order, because it can be asked also. So first came Portuguese, then Dutch, then British, then French, and before British, Danes also came, है ना। We will see Danes, Danes, they also came. हाँ, तो Portuguese, Dutch, British, French, basically these 4 European power came in India, right? So you can make your own mnemonics or anything, but you have to remember the order. जैसे डच और ब्रिटिश का ऑर्डर अलग-अलग जगह पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे रखा है। जैसे ब्रिटिश केम इन 1600, डच केम इन 1602, तो वो ऑर्डर मतलब what do we have to follow? नहीं, वो we will see, है ना, कि कौन सा क्या है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि कौन सा आया है, क्या है ना। 1599 में ब्रिटिशर्स का बनना चालू हो गया था, कंपनी वगैरह, राइट। तो ये ऑर्डर है। नाउ लेट्स सी द अराइवल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, राइट। सो पोर्चुगीज, यू कैन सी from here they came India in this route, ना। ये केप ऑफ गुड होप है, यहाँ से उन्होंने फॉलो किया voyage to India in 1499. Why they came? Spirit of adventure led to foundation of modern world. I have explained you already. Okay, this was the era of geographical discoveries with objective of earning profit, right? This was the reason Europeans are coming. No doubt so far. Now, who was the first? These things you have to remember. So first, जो Vasco da Gama, he came during the tenure of King Emmanuel, okay, and he reached on 17th May 1499. ना, तो अभी एक महीने पहले ही almost, ठीक है, 1499 में, where on coast of Calicut, right? So if this is India, तो यहाँ पे केरला के पास सब कुछ कालीकट, राइट। यहाँ एंड वेरी ऑब्वियस ऑल्सो कि अगर वो सी रूट फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियसली ही विल लैंड हियर, है ना। सो दीज इंफॉर्मेशन यू हैव टू रिमेंबर, राइट। देन इन कालीकट देयर वाज अ रूलर, हेरिडिटरी मोनार्क ऑफ किंगडम ऑफ कोझिकोड, है ना। ही वाज रिसीव्ड बाय ज़ेमोरिन. ज़ेमोरिन इज द नेम ऑफ, you know, the dynasty ruler who was ruling at that point of time. So he welcomed Vasco da Gama,
right? So there is also a story why Vasco da Gama was welcome. So he became happy when Zamarin received Vasco da Gama. So he became happy because Arabs were already trading here, but this Zamarin was not happy with Arab trading. Okay, they were using some other means also, which was not liked by Zamarin, and Zamarin also became happy, like someone else is coming, so he will give good price of trade, है ना? It means competition is coming. जैसे भी अब हम देखते हैं कि हमारे पास मोबाइल में सिर्फ कितने ऑप्शन बचे हुए आज की डेट में, ओनली जियो एंड एयरटेल. सो व्हेन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड बाय दीज टू नेटवर्क, सो वी से कि यार कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं है, राइट? कोई तीसरा ऑप्शन आएगा तो वी विल बी हैप्पी ना, ही विल गिव अस कॉम्पिटिटिव प्राइस. सेम वे Zamorin बिकेम हैप्पी, राइट? सो ही परमिटेड ट्रेड इन स्पाइसेस एंड सेटअप ऑफ फैक्ट्री ऑन द कोस्ट, राइट? उसने इस परमिट कर दिया कि ओके यू डू द ट्रेड ऑफ स्पाइसेस एंड सेटअप ऑफ फैक्ट्री. ओके, वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, व्हाट इज द फैक्ट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्ट्री इन 15th century. So is it like today's factory or what? The factories. No. Factory at that point of time means simply warehouse. They were opening a warehouse where they can, whatever thing they brought with them, they can keep it there, and whatever they are purchasing, they can keep No there. actual manufacturing was happening. No manufacturing was happening. During Britishers' time also. This was the factory. And why they are doing trade in spices? To preserve meat. Exactly. In Europe, there was cold, so to preserve meat, they were, doing trade in spices. And the thing was कि अभी जैसे हमारे पास क्या होता है कि कोई चीज़ अगर आती है, जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट ही है, तो चाइना से लोग लेके आते हैं, बट वी टेक इट फ्रॉम इंडियन सेलर्स, है ना? चाइना का प्रोडक्ट हम किसी चाइनीज से नहीं खरीदते. चाइना का मोबाइल है, किसी हम इंडियन शॉप से ही खरीदते हैं. तो सेम वे ये यहाँ से स्पाइस जो लेके जाते थे वो पूरे यूरोप में बेचते थे ना. यहाँ से सस्ते में खरीद लिया और इन्होंने फिर यूरोप में, स्पेन में और बाकी जगह सब लोगों को बेचना चालू कर दिया. तो दिस वॉज द आइडिया, तभी ये इनको प्रॉफिट होता था, राइट? फिर इन्होंने ट्रेडिंग सेंटर्स कोचीन, कालीकट, कैननोर में बाई 1503 इस्टेब्लिश कर ली. 1498 में आया, right? He stayed there. Vasco da Gama stayed there, है ना? 2 years, for 2 years. 2 साल तक यहाँ पे रहा भी. Then when he saw everything that okay everything is fine, he just sent information to his ruler, है ना? उसके अपने King Emmanuel को. तो what they sent one viceroy. First viceroy was D. Almeida, right? In 1505. कि now you can establish your proper formal channel in India. Okay, so that's why first viceroy is coming, and he was also given the task of removing the the obstacle in sea. यहाँ पे जो मैं आपको अरब्स रूट में बता रहा था ना, अरब्स में ये प्रॉब्लम थी उसकी, तो उसकी भी इसको दिया गया जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. The thing which he followed to remove them is known as policy of blue water. ठीक है? अब उनको क्यों ये दिया गया कि भाई एवरीथिंग इज फाइन, वी हैव डिस्कवर्ड अ न्यू रूट, नाउ यू गो एंड सी दैट हाउ द कॉस्ट ऑफ ट्रेड कैन बी डिक्रीज्ड. तो इस रूट की जगह हम शॉर्ट रूट फॉलो करें, वी आर नवल पावर ऑल्सो, सो लेट्स फाइट विद देम, ओके, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेड को आप कम करो. तो इसलिए पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर कभी आ सकता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फ्रांसिस डी अल्मीडिया वाज द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, एंड व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, दैट आल्सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. ओके, सो नेक्स्ट आफ्टर दैट Albuquerque, he was the second viceroy. He came and he was considered as the main founder of the Portuguese in India, right? So ये दो नाम तो आप apart from Vasco da Gama you have to remember, D. Almeida and then Albuquerque, his timeline also. So he conquered Goa from ruler of Bijapur in 1510, then created fort at Cochin. Okay, so these are the factual information. Now Nino de Cunha acquired Diu and Basin in 1543 and 1538 respectively. So this can be also asked that who acquired, right? So Nino de Cunha.
So these are the Portuguese settlement. Here you don't have to remember anything. What you have to notice that you see all the settlements are in coastal area itself, in coasts only, right? Everything is in coast. So which shows their intent. They just wanted to land in India and do the trade. And plus these were all majorly spice dominant areas. No, it's not like that. Coastal wala nature. हाँ, ये तो spice dominated था ही, but coast is always these are nowadays these are big ports, है ना? तो ये ports हमेशा trade के लिए use होते थे. Masulipatam was very important center, Pulicat was also very important center, right? So you have to just see that they are establishing themselves in coastal areas, right? Could be trade भी easy रहेगा कि एग्जैक्टली बस ट्रेड ही था. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने ही अपने आप को एक्सपैंड किया, बाकी तो सब ट्रेड में थे. अब वी हैव टू सी दैट व्हाई दे आर स्टार्टिंग देयर इन्फ्लुएंसेस स्टार्टेड डिक्रीजिंग, राइट? क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो व्हाट वी स्टडी ओनली ब्रिटिश हिस्ट्री, है ना, ब्रिटिश. क्योंकि फिर इसका मतलब वो कि ब्रिटिश, फ्रेंच और जो भी आया सब साइडलाइन कर दिए गए. तो रीज़न क्या था? तो रीज़न कैन बी फर्स्ट तो इंग्लिश, फ्रेंच एंड हॉलैंड एज ग्रोइंग कॉमर्शियल एंड नेवल पावर, है ना, कि बाकी लोग भी हाथ में हाथ धरे नहीं बैठे हुए थे. इट इज डच ना, या इट इज एज सिंपल एज दैट. कि आप इंडिया में भी, जैसे मैंने स्टार्टअप का आपको एग्जांपल दिया, तो यू सी मैनी स्टार्टअप कम्स, है ना, someone is pioneer and then we see different kind of startups in the same domain, right? Same way Portuguese were doing trade, but others European countries, they also saw opportunity and they started developing themselves, right? So they were growing themselves as commercial as well as naval power. Second, in 1580 Portuguese had become Spanish dependency. So what does this mean? That Portuguese and Spain were separate till 1580. Okay, so whatever trade was Portuguese were doing, they were selling that to Spain and other part of the country also, right? But when they became a Spanish dependency, they came under Spain. So now that opportunity decreased, okay, went away. That was the thing. Could we also say that this was the emergence of colonialism? Early form of colonialism? No, colonialism तो basically Britishers started, okay, Britishers and France they started, and then Duplex was the main, so we can't say that. Then in 1588 English defeated a Spanish fleet called Armada, right? So these are the important events. You can get this PPT also, you don't have to अच्छा okay. Fine then. And also the Portuguese merchants were not protected well. Not protected means government was not protecting. Initially they gave their all the kind of support to go and do the trade, but slowly they stopped protecting them. Okay, it was the case with the France also. It was the case with the Portuguese also, right? So is there a common particular reason? One of the reason, and you will see in case of Britishers, East India Company, their parliament or their government was supporting there, right? They started taking control just after 1857 revolt, huh? Before that they started regulating them, but they took control after 1857 revolt only. Then English defeated Portuguese naval squadron at Swali near Surat in 1612. So these things shows that the power of Portuguese started decreasing, power of French and power of English started increasing, right? So they are now not a naval superpower. So this was the reason of decreasing influence of Portuguese in India. So 2-3 things you can remember, like decreasing naval supremacy, and along with it increasing naval supremacy of whom? The competitors, exactly. Then lack of support of the government, है ना? So 2-3 major idea of decreasing influence of Portuguese is here. Now the Dutch. So Dutch came, they established on 20th March 1602, right? And I think Britishers came late in India. They established themselves there in 1599, but they reached in 1604. I will, one second.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डुअल चार्टर 1600 में साइन हुआ था तो तो हाँ दिसंबर 31 दिसंबर एंड वॉयज अंडर कैप्टन जहांगीर को 1608 है ना 1608 में सबसे पहला वॉयज आया था. So the Dutch were the first. Dutch came before British, yeah. Right. So they established themselves on 20th March 1602, and the name was the United East India Company of the Netherlands. Okay. So they were interested in spice trade of Indonesia. इनको ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था. और फिर 1623 में they defeated English attempt to establish there. Indonesia में English were basically traders, ना East India Company were traders itself. वो बाद में उनको realize हुआ कि यार we can establish here, we can rule in India. But initial तो वो लोग trader ही थे initially. So they were also capturing other part of the कॉन्टिनेंट है ना, जैसे ईस्ट इंडीज़ में इंडोनेशिया, जावा इधर. तो डच ने इंग्लिश को डिफीट कर दिया 1623 में. एंड फाइनली दे मेड देयर एक एग्रीमेंट उन्होंने बनाया. ठीक है. एग्रीमेंट वाज लाइक कि यू बी इन इंडिया, लेट अस बी इन इंडोनेशिया इटसेल्फ. और फिर ओपन फैक्ट्रीज एट पुलिकट, कैम्बे, सूरत, आगरा, हरिहरपुर, कासिम बाजार, चिंसुरा, राइट, नागापट्टिनम इन मद्रास, राइट. यहाँ पे भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोली ना. तो ये आपको ये रिवाइज करके हो जाएगा, कुछ ना वो नहीं है. एंड देयर वाज इंटरमिटेंट वॉर, राइट, बिटवीन इंग्लिश एंड डच इन 1654 to 1667. मतलब एक दोनों में कौन सुपर है उसका वॉर होता ही रहा. एंड फाइनली कंसीडर्ड डिफीट टू इंग्लिश आफ्टर देयर डिफीट इन बैटल ऑफ बिदारा. ये बहुत आगे की स्टोरी है, 1759 के बाद की, मतलब ये हाँ नहीं ये हाँ मतलब ये प्लासी के बाद की स्टोरी है कि डच वर प्रेजेंट देयर, है ना. एंड वो मैं आपको बताऊंगा, वी विल डिस्कस दैट कि कैसे ही लास्ट जो था मीर कासिम, मीर जाफर, इन लोगों ने डच से हेल्प लेने की कोशिश की. So they finally got defeated in 1759. Their presence was there, but there was not prominent power to give the stiff competition to English. English को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनसे, वो अपना ट्रेड वेड कर रहे थे. That's it, right? Pulicat was their main center and replaced by Nagapattinam. ठीक है. तो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा वो नहीं है. By 1663 they had built Fort Williams, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट, कि किसने फोर्ट विलियम्स बनाया. फ्रैंकिस जेवियर जो था वो कोच्चि में था, एंड ही बिल्ट फर्स्ट चर्च इन ये में कोई हाँ क्रिश्चियन मिशनरी इन 1530 में था. एंड फर्स्ट चर्च इन इंडिया वाज बिल्ड देयर, राइट. तो ये सब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इस सेक्शन से. ठीक है. तो ये नीदरलैंड का लोकेशन है. Now comes the British East India Company. So as you know that first you need to understand that why they are coming so late, why they are coming after 100 years of Portuguese, right. So the reason being they were not as good as Portuguese in naval powers, in navy. That's why it took time to come them here, right. And they were trying from 15th century itself, but not getting succeeded, right. Slowly they gathered strength, and then finally in 1599 English Association of Merchants, कुछ लोगों का, कुछ traders merchants का association, they gathered and they went to their queen, right, to ask the permission to do trade in India or East Indies, basically East Indies. So finally Queen Elizabeth gave the permission for 15 years on 31st December 1600, right. 31st December 1600 में परमिशन दे दी, and that permission is known as Royal Charter, right. This is important. Charter क्या कहलाता है? तो the permission given by Queen, right. And they renamed organization as the English East India Company. So this is very humble beginning. Now फिर
voyage started, that he started coming, route is already discovered, well traveled, है ना. Portuguese are coming not only once but बहुत बहुत बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, route is already discovered. So British also started their voyage under Captain Hawkins. This is important. And when he came to India, still there was rule of Mughals, right, and rule of Jahangir. He came in 1608. जहांगीर का था रूल, एंड दे वर वेरी क्लेवर फ्रॉम द बिगनिंग. ब्रिटिशर्स वर वेरी क्लेवर. दिस कैप्टन हॉकिंस, he was knowing that Jahangir is very fond of paintings. So when he came, he gifted him good paintings, a lot of good paintings, and Jahangir became very happy. Okay, Jahangir became very happy that some European friend is coming and he is praising him. So he allowed him to build factory. He gave farman. Farman means permission to build factory at Surat in 1609. Right? 1609 में सूरत में उसने फैक्ट्री दे दी, परमिशन दे दी. अगेन फैक्ट्री मीन्स इट्स जस्ट वेयर हाउस. देन वेयर हाउस एट सूरत एंड मछलीपट्टनम बाय 1613, है ना. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल सी, जो भी अभी स्लाइड्स में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे ब्रिटिशर्स अपने आप को एक्सपैंड करते चले. फर्स्ट दे केम इन सूरत, देन दे विल कम टू मद्रास, देन दे विल गो टू उड़ीसा, देन दे विल गो टू बंगाल. ना अगर ऐसा है तो यहाँ से सूरत से आ रहे हैं, मद्रास में इधर यहाँ मद्रास में आएंगे, उड़ीसा में आएंगे ना, इधर आएंगे, फिर यहाँ पे बंगाल में आएंगे. तो पहले कोस्ट को ही करेंगे. देन दे विल सी दैट हु इज देयर व्हाट कॉम्पिटिटर. तो सबसे पहले पोर्चुगीज ऑलरेडी प्रेजेंट, राइट, पोर्चुगीज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो पोर्चुगीज को हटाओ, ठीक है. सबसे पहले वो पोर्चुगीज को हटाएंगे. यू विल सी देयर स्ट्रेटजी. फिर पोर्चुगीज के बाद फ्रेंच इज प्रेजेंट, फ्रेंच इज ग्रोइंग, सो दे विल रिमूव फ्रेंच. ओके, देन दे विल सी कि अच्छा अब ये तो हट गए, रीजनल पावर्स आ गए, राइट. So we will see that what is Carnatic, what is we will understand this, but let us understand background first कि हो क्या रहा है, इंडो कार्नेटिक या क्या है. तो Britishers have come to India, French is also there, right, but both are fighting. Britishers and French are fighting to have the supremacy over the region, have the trade supremacy. ठीक है, ये रिजल्ट होता है इंडो कार्नेटिक वॉर में, राइट. एंड वाई, बिकॉज दिस मुगल्स आर डिक्लाइनिंग, रीजनल पावर्स लाइक हैदराबाद एंड कार्नेटिक आर इंक्रीजिंग, राइट. दे हैव देयर ओन एम्बिशन एंड थर्ड पार्टी प्रेजेंट इन इंडिया, दे आर ट्राइंग टू एनकैश दैट अपॉर्चुनिटी, राइट, to do the or mingle in their internal affairs and take the benefit out of it, right. So that is their idea. So this has resulted into 3 Carnatic war. We will study first, second and third. So out of 3, first and third, they were the result of, they were the result of their problem in other part of the world, first and third. But second was due to the problem in India itself, right. So basic idea you need to understand कि first and third जो था वो यूरोप में कुछ चीज़ें हो रही थी, उसके कारण इंडिया में ये लोग लड़ने लग गए. लेकिन जो सेकेंड कार्नेटिक वॉर था वो इंडिया सॉइल में ही, इंडियन सॉइल में ही लड़ा गया, राइट. तो इसमें हम लोग पहले देखेंगे कि क्या था, टाइमलाइन रहेगी और रीजंस क्या था, ठीक. और उसके बाद ट्रीटीज़ कौन सी हुई. जिसमें आपको सबसे मुश्किल आएगा वो सेकेंड को ही समझने में आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड तो इट इज़ ईजी. तो फर्स्ट यू सी व्हाट इज़ कार्नेटिक ना. हिंदी में वी कॉल इट कर्नाटक ऑल्सो. हिंदी में अगर आप पढ़ोगे तो कर्नाटक वार बोलते हैं. तो कार्नेटिक इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज इट वाज द सुबा मीन्स एग्जैक्टली प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट सॉर्ट ऑफ सुबा ऑफ मुगल डेक्कन, है ना. मुगल्स डेक्कन, डेक्कन इज दिस एरिया जो डेक्कन हम बोलते हैं, है ना, डेक्कन. तो ये कार्नेटिक है. फाउंडेड बाय सादत उल्ला खां इन 1710 ना. अभी मैं आपको कार्नेटिक के बारे में आई विल टेल इट सेपरेटली, देयर यू कैन अंडरस्टैंड. सादत उल्ला खां इन 1710, राइट. व्हाट वर द रीजंस ऑफ वॉर? रीजंस ऑफ वॉर, द डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी,
one of the reason, Mughal authority. After Mughals, no? Yeah, succession dispute in Karnataka and Hyderabad. So this is very important, the term, the keyword succession dispute. So what is succession dispute? When the major ruler dies, who will take over? Exactly. Now who will be the next ruler in succession? That is succession dispute. This is one of the reason of falling of Mughals also. Mughals also. Okay, succession dispute. So succession dispute in Karnataka and Hyderabad, increasing aspiration of French, and war of supremacy between British and French. Okay, now you tell me all these reasons without giving emphasis on your mind. What I want to say कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि भाई क्यों लड़ रहे हैं ये लोग. क्योंकि वॉर ऑफ सक्सेशन तो मेजर था. कौन आएगा. उसके बाद आपस में भी ये लोग फ्रेंच और इंग्लिश लड़ रहे थे. उसके अलावा सोचो और क्या हो रहा है. राइजिंग एस्पिरेशन ऑफ क्योंकि हर किसी को लगा कि पहले हम तो कर नहीं सकते थे, अब एग्जैक्टली मतलब the superpowers have demolished, तो वो आ सकते हैं उस चीज में. और कोई, because after the decline of Mughals there was no central authority. Exactly, right. So this is we call the clearing of concepts in history. है ना, हिस्ट्री में कोई फिजिक्स जैसा नहीं होगा कि न्यूटन्स का लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. यही कॉन्सेप्ट है. अगर आपको उस टाइम का बैकग्राउंड पता है कि भाई ये 1710 की बात हो रही है, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, ठीक है. ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ, है ना. ब्रिटिशर्स को आए हुए ऑलमोस्ट 100 साल हो गए हैं, फ्रेंच को आए हुए भी 40-50 साल हो गए हैं. बोथ आर कंसिडरेबल पावर्स, दे हैव नेवल सुप्रीमेसी ऑल्सो. तो अब उनको फिर रीजनल पावर्स का राइजिंग हो रहा है, लेकिन उनमें सक्सेशन डिस्प्यूट चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है ना. आई एम नॉट सेइंग दैट दीज आर ओनली 4 रीजंस. यू कैन मेंशन योर ओन, है ना. आपको जैसे आपने ग्रीड वाला बोला था, दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑल्सो. हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि ये मैंने 4 बता दिया तो यही 4 रीजन. तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल बी एबल टू राइट इट, राइट. सो दिस इज द आइडिया. ऐसे ही हम पढ़ेंगे. तो रीजन ऑफ वॉर में आपको कोई पूछेगा तो आप बड़े आसानी से बता दोगे कि व्हाट इज द रीजन, राइट. सो बेसिकली कार्नेटिक का रीजन जो है ना, ये मैसूर है, ये पूरा देखो, ये हैदराबाद, तो ये कार्नेटिक वाला रीजन है, राइट. नहीं, वो उस टाइम के हिसाब से तो छोड़ो. ये कर्नाटक, ये नीचे वाला रीजन है ना ये. और ये हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ठीक. तो नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. तो टाइम लाइन इज 1742 टू 1748, राइट. ये इंपॉर्टेंट है, 1742 टू 1748. एंड इट वाज ड्यू टू द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन. ऑस्ट्रियन, है ना, इन 1740 टू 1748. ऑस्ट्रिया में क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया एक जगह है यूरोप में, यू माइट बी नोइंग. तो देयर ऑल्सो देयर सक्सेशन डिस्प्यूट. क्या हुआ था वहाँ पे, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, यू डोंट हैव टू राइट इट. बट वहाँ पे भी जो उस टाइम पे रोमन एम्पायर हुआ करता था, तो जो मेन उसका किंग था, he had died. ओके. तो नाउ देयर वाज सक्सेशन डिस्प्यूट. तो इसकी डॉटर थी जो उस किंग की, उस डॉटर को थ्रोन पे बैठाने के लिए एक साइड ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे, एक फ्रेंच सपोर्ट कर रहे थे, है ना. सैक्सोनिया और बावारिया 2 जगह थी. तो वन साइड ब्रिटिशर्स वर सपोर्टिंग, अदर साइड फ्रेंच वर सपोर्टिंग. सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट हैपेंड कि फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों वहाँ पे लड़ रहे हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में. सो दे स्टार्टेड फाइटिंग इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे उनकी जो कॉलोनीज हैं, है ना, लाइक नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो दे स्टार्टेड फाइटिंग, इन इंडिया ऑल्सो दे स्टार्टेड फाइटिंग. तो ये था रीजन फर्स्ट वॉर ऑफ उसका फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का. तो इसका पहले आप आइडिया समझ लो कि हो क्या रहा है, उसके बाद आप इसको नोट डाउन कर लेना कि देखो इंडिया में आई टोल्ड यू इम्पोर्टेंट सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स वाज मद्रास, ना. मद्रास इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था. और फ्रेंच बहुत ग्रोइंग पावर थे. तो फ्रेंच ने सबसे पहले अटैक्ड द इंग्लिश पोजीशन इन मद्रास, क्योंकि वहाँ पे भी उनकी लड़ाई चल रही थी. तो मद्रास में इंग्लिश पोजीशन को फ्रेंच ने अटैक कर दिया, ठीक है. तो विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई ब्रिटिश, और ब्रिटिश ने सरेंडर भी कर दिया मद्रास को.
है ना। फ्रेंच इतने पावरफुल थे कि अटैक किया और ब्रिटिश ने मद्रास को सरेंडर कर दिया। मद्रास में कौन उस टाइम पर रूल कर रहा था? नवाब ऑफ कर्नाटक, हिज नेम वाज अनवरुद्दीन, है ना। ये भी मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा, अभी आप बस नाम देख लो। हिज नेम वाज अनवरुद्दीन, है ना। तो ब्रिटिशर वेंट टू हेल्प, आस्क फॉर हेल्प, अनवरुद्दीन वेंट टू फाइट अगेंस्ट फ्रेंच, है ना। लेकिन वो दोनों हार गए थे, ब्रिटिश भी हार गया और अनवरुद्दीन भी हार गया। तो फ्रेंच सेटलमेंट था, ठीक है। और फिर जब उन्होंने इंडिया में ऐसे अटैक कर दिया मद्रास पर फ्रेंच ने, तो वॉर स्टार्ट हो गया, राइट। द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर बिगेन, द नवाब सेंट अ फोर्स अगेंस्ट द फ्रेंच, है ना, बट इट सफर्ड अ क्रशिंग डिफीट। तो वो जो लड़ाई हुई उसको कार्नेटिक वॉर बोल दिया, कि जो अनवरुद्दीन और इंग्लिश ने भेजा फ्रेंच के खिलाफ, हाँ, तो फ्रेंच आ गए, दैट इज वॉर। बट हाँ, इंग्लिश आ रही, ठीक है। लेकिन जो ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था वो भी वहाँ सॉल्व नहीं हो रहा था ऑस्ट्रिया में, है ना। बहुत पीस नेगोशिएशन चल रही थी, बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा था, बट इट वाज नॉट गेटिंग सॉल्व। फाइनली दे केम टू इन कंक्लूजन दैट ओके लेट्स सेटल इट, ना। तो वहाँ पे जब वॉर सेटल हो गया इंडिया में भी, फिर 14 इन्होंने भी बोला कि ठीक है अब इसको ख़त्म करो, और 1748 में ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल। एक्सला-चैपल क्या है? फर्स्ट कर्नाटक वॉर को एंड करने के लिए जो एग्रीमेंट्स है। बट व्हाट इज दिस एक्सला-चैपल? इट इज़ अ प्लेस, हाँ, जगह, प्लेस इन वही यूरोप में ही है। ट्रीटी ऐसी होती है ना, ट्रीटी ऑफ वर्साई, पेरिस ट्रीटी, है ना, तो वो जगह के नाम से होती है ना। तो ये रीज़न था, दिस वाज द रीज़न ऑफ हैविंग फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। It was very simple, no doubt so far, ना। But you remember from here that Anwaruddin fought against French along with British, है ना। and lost. हाँ, it will help us in Second Carnatic War to understand Second Carnatic War. Right, Treaty of Aix-la-Chapelle, Madras was restored to English and some territories in North America. मतलब जिसकी जो territories थी वो वापस कर दी गई, है ना। French ने they have captured Madras, तो Madras was restored to them. That's it. Now comes the Second Carnatic War. This is very important. This you have to listen carefully. Then you can make all the notes. Right. So timeline is 1751 to 1754. 51 to 1754. है ना. After ending the after 3 years of ending फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, है ना। फर्स्ट कब एंड हुआ? 1748 में, तो 3 इयर्स के बाद वो हो गया। अब देखो क्या हुआ इससे पहले कि निज़ाम इन द डेक्कन डाइड इन 1748, ठीक है, लिविंग पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर। ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, इससे पहले आप देखो कि सिचुएशन क्या है कर्नाटक और हैदराबाद की। सबसे पहले यू अंडरस्टैंड अबाउट हैदराबाद, हैदराबाद क्या है, हैदराबाद में क्या हो रहा है। देन कर्नाटक का हम पढ़ेंगे, फिर इसमें आएंगे। तो हैदराबाद जो था, हम रीजनल पावर्स के इमरजेंसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। हाँ, ये रीजनल पावर्स हैदराबाद है, फिर कर्नाटक है, फिर वी विल स्टडी बंगाल, मैसूर, है ना, मराठा। हैदराबाद है, तो हैदराबाद वाज द ऑटोनोमस किंगडम, was founded in 1745. बेसिकली जो पहले वो सूबा था मुगल्स का, सब जो भी छोटे छोटे थे मुगल्स के ही थे, हमेशा मुगल्स को ही लोग पैसे दिया करते थे। बट 1745 में चिनकिलिस खां, और इसका दूसरा नाम निज़ामो असफ जाह फर्स्ट, ना, ही वाज द वजीर इन मुगल्स टाइम, है ना। मुगल्स में देखो मोहम्मद शाह रंगीला बना, मोहम्मद शाह रंगीला एक वो था, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। वाई ही इज नोन एज रंगीला? बिकॉज ऑफ हिज हैबिट्स, है ना, इसलिए दैट्स वाई, ठीक है। तो ही वॉज वेरी व्हाट शुड आई से, बहुत ही लग्जरियस लाइफ टाइम और बहुत वैसा था, ठीक है, चिल। और ये जो इसके टाइम पे ही चिनकिलिस खान, ही वॉज द वेरी एबल नोबल, है ना, नोबल उस टाइम जो हुआ करते थे, ही वॉज वन एंड ही गॉट फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज पॉलिसीज, सो ही थॉट टू कार्व आउट फ्रॉम मुगल्स फर्स्ट एंड एस्टेब्लिश इट्स ओन प्रोविंस, है ना। दैट्स वाई ही फाउंडेड इन 1744 Hyderabad. At that point of time, in Hyderabad, the ruler of Deccan was Mubaris Khan. No? Where it is written? It is written somewhere. Second last one. हाँ, Muhammad Shah. Next line. The running got Sayyid with no. 1 second.
निजाम 1723 1748 हाँ, निजाम मुवारिस खान है ना, he came to Hyderabad. Hyderabad was ruled by Muwaris Khan. He defeated and established himself, right? And Nizam was leader of the Turani faction. Turani faction तो you don't तो worry. roots थे ईरानी, तुरानीज, हिंदुस्तानी, दुरानीज ऐसे हुए करते थे. Got the Sayyid brothers assassinated in 1720. ना, he because of him, Sayyid brothers जो दो brothers थे ना, he with the help of Nizamul Mulk Asaf Jan, Sayyid brothers got assassinated. Right? Muhammad Shah appointed Nizam as his wazir from 1722 to 724. मतलब wazir, you can understand his importance, right? Wazir means prime minister at that point of time. तो वो था ये आसफ जा, निजामुल मुल्क, सिलसिलेश खान, 2-3 नाम है इसके, राइट? So he finally established Hyderabad, and his successor were his son Nasir Jang and his grandson Muzaffar Jang, right? His son Nasir Jang and his grandson Muzaffar Jang. Now you tell me one question, answer of one question, that if father dies, okay, so who will rule after father? His son or his grandson? son Who was his son? Nasir Jang. So he should rule, but no, the throne was captured by Muzaffar Jang. The reason being, Nasir Jang was in hurry. He tried to kill his father before his natural death. So जब यार इतना So we've seen that many times in the Mughal and the Delhi Sultanate time also कि जो next line of succession होना चाहिए था उसको kill करके जो हाँ, वो एक उस टाइम का औरंगजेब also did the same thing. सिस्टम था, है ना? तो बट ही बिकेम वेरी अनहैप्पी कि यार ये मेरा लड़का है और मतलब दोनों का कोई मैच नहीं था. तो दैट्स व्हाई ही डिड नॉट गिव नेचुरल थ्रोन टू नासिर जंग. तो मुजफ्फर जंग केम इनटू द पावर. ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम हो गई. तो ये है स्टोरी ऑफ हैदराबाद. नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ कर्नाटक. यहाँ तक कोई डाउट? बहुत सिंपल है ना, कि ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड बाई पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, कार्व्ड आउट हिमसेल्फ. Okay, came in Hyderabad. Hyderabad was ruled by Muwaris Khan. So he defeated Muwaris Khan, established Hyderabad. है ना? He ruled till 1408. Till 48 everything was fine. But 48 में उसकी डेथ हो जाती है और इन दोनों के बीच नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में अब प्रॉब्लम हो जाएगी. राइट? वेरी डिफिकल्ट पार्ट है ये. इसको अगर आप समझ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा. नाउ सी द स्टोरी ऑफ कर्नाटक. What happens in Carnatic? I told you, established by Sadatullah Khan first, 1710. Same story, frustrated by Mughals. He was also an able noble. Okay, he established himself. 1732, he was not having any son. No? He was having only daughters. So instead of his one son-in-law, Chanda Sahib was there. Chanda Sahib, he wanted to get into the power, right? But instead of Chanda Sahib, he gave the power to Dost Ali Khan, who was the adopted son from his brother. ना, भाई अपने दामाद को क्यों देगा अपने जिसको? सेम हो गया ना फिर. हाँ हाँ, खानदान तो सेम हो गया ना. हाँ, खानदान सेम हो गया. उसने अडॉप्ट कर लिया है उसको उसके लड़के जैसे ही. तो दोस्त अली खान को दे दिया. लेकिन चंदा साहब के अंदर तो फिर आग अभी जल ही रही. हाँ, ठीक है. तो चंदा साहब एक प्लेयर हो गया. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे 1732 इट वाज लाइक जो कर्नाटक के रूलर्स थे, दे वर डाइंग लाइक एनीथिंग. मतलब 1-2 साल में ही मर जा रहे थे. ठीक है. तो 1740 में सफदर अली खान बना. फिर उसके बाद सादतुल्लाह खान 2 बना ना. ज़्यादा आपको ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है 1744 में अनवरुद्दीन बिकेम नवाब, है ना. अनवरुद्दीन हेल्प किया था. एक्चुअली जो नवाब था वो सादतुल्लाह खान 2 बना, है ना. लेकिन अनवरुद्दीन वाज हिज रेजेंट. रेजेंट में केयरटेकर, राइट. मेन तो वही था अनवरुद्दीन. तो अनवरुद्दीन आ गया. बट एक साइड कौन है? चंदा साहिब. अच्छा, अगर जैसे हमसे पूछा जाता है कि कर्नाटक वॉर्स के टाइम पर जिन्होंने हेल्प किया और दोनों का ऑप्शन आता है, तो हु वुड बी पिक? क्योंकि रूलर तो ऑफिशियली सादतुल्लाह खान था, लेकिन नहीं, अनवरुद्दीन. ठीक है. तो आप देखो कौन 2 कंटेंडर इन द केस ऑफ हैदराबाद. हु आर 2 कंटेंडर ऑफ पावर? उसके बेटा. हाँ, दोनों जंग है ना. नासिर जंग है, मुजफ्फर जंग. इन केस ऑफ कर्नाटक हु आर 2 कंटेंडर ऑफ पावर? चंदा साहिब एंड दोस्त अली खान. नो, दोस्त अली खान तो अब इसका सीन खत्म. चंदा साहिब यहाँ से देख रहा है और अब अनवरुद्दीन पावर में आ गया ना. 1744 में है हम अभी.
ओके ठीक है। चंदा साहब का तो वो जो भी है डेथ वेथ हो गई, सफदर अली बन गया। चंदा साहब ने इसकी है, दोस्त अली खान की। चंदा साहब वन प्लेयर एंड देन अनवरुद्दीन इज द सेकंड प्लेयर हियर आल्सो। और जो तीसरा दूर से देख रहे हैं कि क्या चल रहा है भाई हैदराबाद में, क्या चल रहा है कर्नाटक में, वो कौन है? फ्रेंच एंड इंग्लिश। ठीक है। अब देखो कौन किसके साइड जाएगा। ये यहाँ की स्टोरी ठीक क्लियर हुई ना। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग सीन है ये, मतलब इसकी तो मूवी बननी चाहिए मुझे ऐसा लगता है। अब ये टीम फॉर्म करते हैं। ठीक, टीम बनती टीम ए एंड टीम बी। कार्नेटिक हैदराबाद टीम है, इसको थोड़ा इन्होंने वहाँ लिख दिया, यहाँ पे टीम ए एंड टीम बी होना चाहिए। ठीक है। तो इसको हम लोग अभी खुद फॉर्म करते हैं कि पहले ही बताओ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में, इन फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हु वाज द रूलर ऑफ मद्रास, हु वाज रूलिंग फर्स्ट में, है ना। वी सॉ ना कौन रूल कर रहा था मद्रास को, कौन किससे हारा था? मद्रास को किसने कैप्चर किया था? हु कैप्चर्ड मद्रास? फ्रेंच, राइट। फ्रेंच ने कैप्चर किया। और कौन हारा? इंग्लिश फॉट विथ किसके साथ उन्होंने पेयरिंग की थी? अनवरुद्दीन। ये तो कर्नाटक का ही था। कर्नाटक का ही तो था, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। मद्रास वही हो गया। अनवरुद्दीन और इंग्लिश थे, है ना। देखो अनवरुद्दीन प्लस इंग्लिश, ये दोनों साथ में लड़े, दोनों हार गए। तो अब अनवरुद्दीन किसके खिलाफ लड़ेगा? फ्रेंच के खिलाफ ऑब्वियसली, है ना। तो ये हमेशा एक टीम में ही रहेंगे, ब्रिटिश और अनवरुद्दीन, है ना। और ये लड़ेंगे किसके खिलाफ? फ्रेंच के। अच्छा, अब जब एक अनवरुद्दीन कार्नेट, हाँ दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू ना, कि अभी आप देख समझो इसको, इंग्लिश और अनवरुद्दीन हो गया तो फ्रेंच का एक पार्टनर खत्म, मतलब कार्नेटिक का। कार्नेटिक का दूसरा कौन था कंटेंडर अनवरुद्दीन के अलावा? कार्नेटिक का सादतुल्लाह खान नहीं, चंदा साहिब ना। सादतुल्लाह खान तो अभी सीन से बाहर है। सादतुल्लाह खान जब छोड़, बस अनवरुद्दीन और चंदा साहिब जो डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, चंदा साहिब जो दोस्त अली खान को हटाकर जो वो करते थे। हाँ, चंदा साहिब थे जो, तो चंदा साहिब कंटेंडर ऑफ पावर है और अनवरुद्दीन है कंटेंडर ऑफ पावर। तो चंदा साहिब ऑब्वियसली विल गो टू फ्रेंच, है ना। ये अनवरुद्दीन हो गया। तो फ्रेंच एक पार्टी हो गई, कार्नेटिक सेटल हो गया। ठीक है, कार्नेटिक सेट कि ठीक है, एक चला गया भाई किसके साथ? फ्रेंच के साथ। एक चला गया इंग्लिश के साथ। अब बचा कौन? हैदराबाद। तो हैदराबाद में है नासिर जंग। ठीक है, अब एक इसको अच्छे से समझो। हु इज इन पावर? नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। हु इज इन पावर राइट नाउ? Muzaffar Jung, he is the grandson. Okay, he is in power. And who is strong right now? French or British? French, because they have defeated British. है ना? So obviously Muzaffar Jung will go to French, क्योंकि भाई उसको अपना हाँ ठीक है। तो ये देखो आप ये स्टोरी देखो, मुजफ्फर जंग, फ्रेंच और चंदा साहिब, टीम ए, अनवरुद्दीन, नासिर जंग और ब्रिटिश। ठीक, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन होगा? जो मैंने लॉजिक बताया उस लॉजिक से अगर आप जाओगे तो I don't think there will be any confusion. Everything is logical. Why Anwaruddin is going to British? Because he has fought along with British. That's why he will fight against French. And the French, no other option left with Chanda Sahib. He will go to French. Okay, he was also friend of French since the beginning. Then in case of Hyderabad, Muzaffar Jung, definitely he is in power. He will go to strong contender, winnable contender. Okay, winning team French, and then Nasir Jung will go to British, right? So they form the team. So यहाँ से मेन कार्नेटिक वॉर सेकेंड स्टार्ट होता है कि सक्सेशन डिस्प्यूट है, एक दूसरे को मतलब पावर में आना है, ब्रिटिशर्स और ये हो गया। तो ये अगर आपको याद रहेगा ना तो कभी फिर कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट इज कोर्स ऑफ इवेंट्स। फिर क्या होता है देखो, 1749 टीम इज रेडी, है ना, टीम इज रेडी, अब दोनों को लड़ना है। 1749 में बैटल ऑफ अंबुर होता है। ठीक, इसमें डुप्लेक्स सील्ड सीक्रेट डील विद चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। फ्रेंच आर सुपर, ठीक है, उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ अंबुर में अनवरुद्दीन को हरा दिया। फिर से एक बार ब्रिटिश को समझ लो, हरा दिया अनवरुद्दीन को। ठीक है, हिज सन मोहम्मद अली फ्लेड टू तिरुचिरापल्ली। किसका सन? अनवरुद्दीन का, ऑब्वियसली। ही फ्लेड टू तिरुचिरापल्ली। चंदा साहिब बिकेम द नवाब ऑफ कर्नाटिक। अनवरुद्दीन इज, है ना, चंदा साहिब का पूरा हो गया।
इन हैदराबाद नासिर जंग वॉज किल्ड, एक अम्बुश हुआ वहाँ पे, तो नासिर जंग भी मर गया। तो चंदा साहब became powerful। नहीं, मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग है ना। तो आप देखो ना, एक दोनों साइड से एक एक मर गया। हाँ। नासिर जंग भी मर गया इधर से, और उधर से अनवरुद्दीन मर गया। तो इनको कोई, ब्रिटिशर्स को तो अपना देखना है ना, ब्रिटिशर्स और इनको ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई लेकिन। हाँ, तो इनकी मोहरे थे, चले गए, ठीक है। तो ये था सब्सटेंशियल। अब जब ये हुआ तो क्या हुआ, फ्रेंच एक तरीके से जीत गया। तो सब्सटेंशियल टेरिटोरियल कंसेशन वर ग्रांटेड टू फ्रेंच, है ना। नॉर्दर्न सरकार दे दिया, मसूलीपट्टनम दे दिया, और पौंडीचेरी के अलॉन्ग भी उनको दे दिया, ठीक है। जीत खुश हो गया, चंदा साहब पावर में आ गया। चंदा साहब ने फ्रेंच को ही दे दिया क्योंकि ही वॉज द फ्रेंड ऑफ फ्रेंच, है ना, और फ्रेंच के साथ ही किया। एंड ऑल्सो डुप्लिक्स स्टेशन इज बेस्ट ऑफिसर बुस्सी एट हैदराबाद। इसने कर्नाटिक तो इसका ही आदमी बैठा है, चंदा साहब। हैदराबाद में भी मुजफ्फर जंग इसी का आदमी बैठा है, लेकिन टू कंट्रोल द इंटरनल अफेयर्स ही सेंट हिज बेस्ट ऑफिसर बुस्सी, ओके, एट हैदराबाद विद अ फ्रेंच आर्मी, thus ensuring continued French influence in his court। तो यहाँ तक एकदम क्लियर पिक्चर है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स as I told you, they are always ready to fight back। they are having their what should I say, preparation with the son of Anwaruddin, जो तिरुचिरापल्ली चला गया था ना। तो हाँ, उसका जो नाम था पीछे हमने देखा था, उसका नाम मोहम्मद अली था, ठीक है ना, एक बार देख लो आप। तो मोहम्मद अली, राइट, मोहम्मद अली था। अब ये लोग क्या करेंगे, सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो मतलब चल रहा है, इसमें चंदा साहिब वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड एंड मोहम्मद अली वॉज प्लेस्ड टू थ्रोन। वो वहाँ से ब्रिटिशर्स आएंगे, जहाँ पे इसका आइडिया जो जगह थी चंदा साहब की, उसको अटैक घेर लेंगे, घेर के चंदा साहब को मार डालेंगे, ठीक है। He was killed and placed to throne of Carnatic। The French forces suffered defeats at the hands of English। मतलब ये जो वॉर होता है इसमें इंग्लिश हार जाते हैं। सेकेंड वाले में इंग्लिश नहीं, फ्रेंच फोर्स हार जाते हैं, फ्रेंच हार जाते हैं, इंग्लिश आके उनको डिफीट कर देती है। फर्स्ट वाले में इंग्लिश हार जाते हैं, सेकेंड वाले में फ्रेंच हार जाते हैं। हाँ, फर्स्ट वाले में फ्रेंच इंग्लिश हार जाता है, ठीक है। सेकेंड वाले में, फर्स्ट वाले में हारना तो नहीं, मतलब एक अपर हैंड फ्रेंच का रहता है। वो तो ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल में दोनों को वापस मिल जाता है, लेकिन अपर हैंड फ्रेंच का रहता है। सेकेंड वाले में अपर हैंड, अब देखो सेकेंड वाले में क्या है, दो कोर्स, एक तो बैटल ऑफ अम्बूर, वो जो अभी हमने देखा, ठीक है। उसमें क्या हुआ, चंदा साहिब वॉज प्लेस्ड टू द थ्रोन एंड देन इन हैदराबाद नासिर जंग वॉज किल्ड एंड सो मुजफ्फर जंग वॉज प्लेस्ड टू द थ्रोन, ठीक है। दोनों जगह फ्रेंच का पावर हो गया, फ्रेंच का ही जो नुमाइंदा या फ्रेंच की वो हो गया। लेकिन ब्रिटिशर्स वेर पावरफुल ऑल्सो। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो जहाँ पे चंदा साहब था उसको अटैक कर दिया, चंदा साहब को मार दिया, ठीक है। उसकी जगह मोहम्मद अली को बैठा दिया, और इतना भयंकर हुआ कि फ्रेंच सफर्ड हैवी डिफीट, ठीक है। एंड फाइनली जब इन दोनों के बीच में ये हुआ कि बहुत भयंकर डिफीट हो गई, तो एक ट्रीटी साइन हो गई 1754 में, ठीक है। ट्रीटी का कोई ऐसा नाम नहीं है, बट फ्रेंच एग्रीड टू इंग्लिश डिमांड टू रिकॉल डुप्लिक्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फ्रेंच ने, अब ये टाइम पे ऐसा था 1754 में ब्रिटिशर्स वेयर देयर पावर वर ग्रोइंग एंड फ्रेंच पावर वाज डिक्रीजिंग। ओनली डुप्लिक्स वाज द मैन हु वाज कीपिंग द फ्रेंच होप अलाइव ना। डुप्लिक्स ही ऐसा था, डुप्लिक्स को सस्पेंड भी कर दिया गया था, लेकिन उसने अपने पर्सनल, उसको बोला गया था कि यू स्टॉप ऑल द डेवलपमेंट इन इंडिया, बट उसने ऐसा नहीं माना, ऑर्डर नहीं माना। ही कंटिन्यूड डेवलपमेंट बाय हिज ओन फंड्स ना, क्योंकि इसका एस्पायरेशन था, ही न्यू कि क्या कुछ किया जा सकता है। मतलब आप ये समझ लो कि जो इंग्लिश ने किया वो फ्रेंच कर सकते थे, इफ डुप्लिक्स वुड हैव नॉट बीन एम्बिशियस पर्सन, मैन ऑफ द लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ही वॉज नॉट हैविंग गवर्नमेंट सपोर्ट, है ना, वो एक रीज़न था। तो फ्रेंच और इंग्लिश को पता चल गया कि भाई अगर कुछ करना है तो डुप्लिक्स को भगाओ उसको। तो उन्होंने बोला कि फ्रेंच को कि आप इसको वापस ले जाओ डुप्लिक्स को, ठीक है। 1754 में फिर उसको वापस ले गए। फ्रेंच सफर डिफीट एंड फाइनली इन रिटर्न दे वर अलाउड टू रिटेन कंट्रोल ऑफ कर्नाटिक, और बोल दिया कि भाई ठीक है आप कर्नाटिक का कंट्रोल रखो, क्योंकि चंदा साहिब है ना। 4 नॉर्दर्न सरकार्स एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर हैदराबाद, आप सब रखो, बस डुप्लिक्स को ले जाओ, ठीक है। आप हैदराबाद में भी कंट्रोल रखो, आप कर्नाटिक में भी कंट्रोल रखो, लेकिन डुप्लिक्स नॉर्दर्न सरकार भी आप ले लो जो उसको दिया गया था, लेकिन डुप्लिक्स को ले जाओ, ठीक है। एंड दिस वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी।
जी ये जो- ऊपर वाली ट्रीटी थी, हाँ यही है एग्जैक्टली, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी। ठीक है, तो ये था सेकेंड कर्नेटिक वॉर। ठीक, अगर आपको एक बार रिवाइज करना है तो रिवाइज कर सकते हो ऐसे ही बोल के कि क्या कैसे हुआ था, सो दैट इट कैन बी क्लियर इन योर माइंड। कब से कब तक हुआ था? 54 तक तो हुआ था, स्टार्टेड फ्रॉम 48 से 51 51 से, है ना? 48 के 3 इयर्स का गैप था, वो मैंने बता दिया तो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो 51 टू 54 एंड रीज़न वाज वेरी सिंपल। सक्सेशन, यहाँ पर वॉर ऑफ सक्सेशन, सेकंड वाले का नाम कर रहे हैं, वॉर ऑफ सक्सेशन था, जहाँ पर जो दो कर्नाटक के जो रूलर थे, कौन कौन रूलर थे? अभी ईयर कुछ मत बताना, बस नेम ऑफ द रूलर, यू जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द रूलर। अनवरुद्दीन जो था, जो अभी करंटली था, लेकिन चंदा साहब को लगता था कि ये मेरी होनी चाहिए, राइट, तो ही वाज मोर लाइक कि भाई मेरा हक है मुझे। राइट। तो उसके बाद फिर दूसरा था इधर, दूसरा हैदराबाद में कौन था? हैदराबाद में जो मुजफ्फर जंग और जफर जंग और नासिर जंग, एग्जैक्टली, हु वाज द नासिर जंग? ये इनका चिनकिलिच खान नहीं, हाँ चिनकिलिच खान का तो आसिफ जंग। हाँ, इसका कौन था? आसिफ जंग का एक बेटा था, एक पोता था। तो बेटा कौन था? मुजफ्फर जंग पोता था और नासिर जंग बेटा था। राइट, तो बनना नासिर जंग को चाहिए था, लेकिन उसकी जगह पे मुजफ्फर जंग जो है वो बन गया था। तो दैट बिकेम कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन। उसके बाद कर्नाटक वॉर्स में हमारे पास 2 टीम्स हो गई। एक टीम में हमारे पास हो गया इंग्लिश, मुजफ्फर जंग, नहीं नासिर जंग, इंग्लिश, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। और एक में हमारे पास हो गया फ्रेंच, मुजफ्फर जंग और वो चंदा साहब। राइट, ठीक है, उसके बाद ये तो टीम फॉर्मेशन हो गया है ना, ग्राउंड सेट फॉर द बैटल। फिर उसके बाद इंग्लिश जो है हार गए थे, तो मुजफ्फर जंग जो है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब दोनों को रिस्पेक्टिव जगहों में कर्नाटक और हैदराबाद में बिठा दिया गया था। और फिर इंग्लिश ने वापस अपना पावर रीगेन किया एंड देन दे अटैक कर्नाटक, और मुजफ्फर जंग को वहां से हटाकर उनके बेटे मोहम्मद अली को वहां पर बिठा दिया गया। एंड देन उसके बाद नहीं, चंदा साहब को हटा के, चंदा साहब का मोहम्मद अली को, चंदा साहब को हटाकर मोहम्मद अली को बिठा देगा ना। उसके बाद जो ये, क्योंकि दोनों जगहों पर फ्रेंच ही आ गए थे, तो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन वाज सॉर्ट ऑफ रिजॉल्व। लेकिन इंग्लिश जब वापस से रीगेन कर गए तो उन्होंने कहा कि भाई बाकी सब छोड़ो, ड्यूप्ले को ले जाओ। उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया, अगर नॉर्दर्न सरकार भी रख लो, सब रख लो। एंड देन उसके बाद उसने वो बसी को भी हैदराबाद हाँ, में वो तो डुप्ले डुप्लेग ने पहले बार में कर दिया था। ठीक है, मतलब आपको 80% क्लियर है, 90% आई वुड से एक बार रिवाइज कर लोगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको रिवाइज करते रहोगे तो भूलेगा नहीं अब। ठीक, अब हम लोग थर्ड कर्नेटिक वॉर देखते हैं। तो ये सबसे डिफिकल्ट था, अगर ये क्लियर दो तो फेजेस में है ना सेकंड कर्नाटक वॉर। 2 फेजेस तो नहीं बोलेंगे, एक ही फेजेस है, एक ही फेज है। बस वो कोर्स ऑफ इवेंट में पहले बैटल ऑफ अंबुर हुआ था, फिर बैटल ऑफ अंबुर हुआ था, है ना, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो हुआ था। तो फेज तो नहीं बोलेंगे, कोर्स ऑफ इवेंट्स बोलेंगे। Next is third Carnatic War. Okay, so first Carnatic War ended it year 1748 में ended, 1751 में second began, and 54 में it ended, है ना. So you can be asked that when the reign of or the time period of Dupleix ended. 1754. Yes. 42 से. अरे वो तो ही केम हियर इन इंडिया 1720 में ही आ गया था, बट है ना 1740 में ही बिकेम था वो डायरेक्टर जनरल फिर सबका पूरा सेटलमेंट का। 54 में उसको बुला लिया गया। ठीक है, अब थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्टेड इन 1758 टू 63। तो इट वाज आल्सो द रिजल्ट ऑफ 7-year वॉर बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच इन यूरोप, जो 1756 से 63 में चला था। ठीक है, जैसे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था ड्यू टू ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, सेम वे यूरोप में अभी फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है, दे आर फाइटिंग फॉर देयर सुप्रीमेसी, टेरिटोरियल गेन, सो दिस रिजल्टेड इन 7-year वॉर। वी विल स्टडी दिस इन
वर्ल्ड हिस्ट्री, सो डोंट नीड टू गो इन डिटेल, जस्ट 7 ईयर वॉर यू रिमेंबर 1756 टू 1763 में था, है ना। तो यहाँ पे जो इंग्लिश 1756 से 63 ये 7 ईयर वॉर है, अच्छा दिस इज 7 ईयर, कार्नेटिक वॉर 58 टू 63, है ना। तो सेम विद दे स्टार्टेड फाइटिंग हियर। तो ब्रिटिश ने काउंट डे लेली वॉज अपॉइंटेड द कमांडर ऑफ द एक्सपीडिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश, फ्रेंच कमांडर था नहीं अगेंस्ट अपॉइंटेड द एक्सपीडिशन अगेंस्ट यस फ्रेंच कमांडर, ठीक है। ब्रिटिश कैप्चर द फ्रेंच पोजीशन ऑफ चंद्रनगर इन 1757, ठीक है। अब देखो ये वो टाइम है, थर्ड कार्नेटिक वॉर वी आर डिस्कसिंग हियर, ब्रिटिशर्स आर हैविंग कंट्रोल ओवर बंगाल, प्लासी हाँ प्लासी से उन्होंने बंगाल को हरा दिया है, ठीक है। हाँ प्लासी वो बहुत पावरफुल हो रहे हैं ब्रिटिशर्स, लेकिन यहाँ से इनका डुप्लेक्स भी चला गया फ्रेंच का, ठीक है। इनका सेटलमेंट, अब ब्रिटिशर जो चंद्रनगौर था वो कलकत्ता में एक जगह मतलब बंगाल में थी चंद्रनगौर, वहाँ पे ब्रिटिश कैप्चर द फ्रेंच पोजीशन ऑफ चंद्रनगौर में था, तो ब्रिटिश ने उसको कैप्चर कर लिया 1757 में। द फ्रेंच फैक्ट्री ऑफ बालासोर वॉज सीज्ड बाय ब्रिटिश अलॉन्ग विद वन ऑफ द कासिम बजा, मतलब उनको फ्रेंच का खात्मा करना था पूरी तरीके से। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स वेयर मतलब स्ट्रॉन्ग, वही कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। तो 22 जैन 1760 को बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ, इसमें फ्रेंच का काउंट डी लैली वॉर डिसाइसिवली डिफीटेड एज पौंडीचेरी वॉज सीज्ड बाय ब्रिटिश सर आयरी कूट। तो इसको आप ऐसे याद रखो, कूट ने डी लैली को कूट दिया, ठीक है। तो ये था बेसिकली, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फ्रेंच इज फॉर्मिडेबल पावर नाउ, कुछ उनका ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, नॉट कंसिडरेबल। तो ब्रिटिश आर गिविंग जस्ट फाइनल नेल इन द कैफिन, ओके, वो पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो चंद्रनगौर में पहले जाके ख़त्म किया, बालासोर की फैक्ट्री थी, कासिम बाजार की फैक्ट्री थी, उसको सेटल किया। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ, 22 जैन, दिस डेट यू कैन रिमेंबर। फाइनली जो भी फॉर द नेम सेक जो भी हुआ, ऑब्वियसली द रिजल्ट वॉज एक्सपेक्टेड। तो फ्रेंच का जो गवर्नर था, जो मेन वो कमांडर था, काउंट डी लैली, ही वॉज डिफीटेड बाई आयरी कूट, राइट। सो दिस वॉज द एंड ऑफ फ्रेंच सेटलमेंट इन इंडिया। 64 में मतलब था थोड़ा बहुत सेटलमेंट था, उसके बाद उन्होंने बोला कि आप ट्रेड करो, सब करो, है ना। नेक्स्ट ट्रीटी जो हम देखते हैं कौन सी हुई थी, बैटल ऑफ वांडीवाश के बाद ट्रीटी ऑफ पेरिस, है ना, 1763 में। अब पेरिस, वाई ट्रीटी ऑफ पेरिस वॉज साइन, वहाँ पे बैठो यस, क्योंकि वो 7 ईयर ऑफ वॉर चल रहा है ना। इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस वही हुई होगी फ्रेंच उस वॉर को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्योंकि लेकिन ये डिसाइड हुआ कि ओके, फ्रेंच गॉट बैक ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया, चंद्रनगर, पौंडीचेरी प्रायर टू 1749 वापस दे दिया गया, विद द प्रोविंस दैट इट कुड नॉट फोर्टिफाई, प्रोविजन दैट इट कुड नॉट फोर्टिफाई चंद्रनगर, क्या फोर्टिफाई नहीं कर सकते। बैलेंस ऑफ पावर डिसाइसिवली शिफ्टेड इन फेवर ऑफ इंग्लिश विद द एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। मतलब आप सोचो कि अब ये डिसाइड हो गया कि हु विल रूल इंडिया, ब्रिटिश। इट वॉज डिसाइडेड आफ्टर बैटल ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर, बैटल ऑफ वांडीवाश, है ना। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ वांडीवाश, इट इफ इट्स आस्क्ड इन दैट वे, देन व्हाट वुड यू से कि बैटल ऑफ वांडीवाश का क्या इंपॉर्टेंट है, importance. Exactly. And if somebody asks कि what is the end point or decisive point, जब ये decide हुआ कि yeah, right, Treaty of Wandiwash. So these are the historical events. आपसे इंटरव्यू में, let's say you go in interview, आपसे पूछेंगे कि what is the point of history, जिसको आपको अगर मौका मिले तो आप उसको चेंज करो, तो ये एनालिसिस आपको देना पड़ेगा कि सर अकॉर्डिंग टू मी बैटल ऑफ वांडीवाश वाज द थिंग ना। या फिर अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले जो जहांगीर ने परमिशन दी थी, इफ आई वुड हैव जहांगीर, राइट, सो आई वुड हैव नॉट अलाउड देम टू डू द ट्रेड, है ना, अगर मुझे पता होता है तो ये चीज़ होता है एनालिसिस, राइट, ये आपको लिखना भी होता है। तो दिस इज दीवानी could have been avoided. Diwani काम कर रहे थे तो no, Diwani could have not been avoided because Diwani right was given in 1764 when the India's polity was in mess. No polity, no regional power was there, no central authority was there. When Marathas could have been could have taken place the Mughal role, but there was some problem. Right, so 1755 or Diwani right was too late. ठीक है ना। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए,
फ्रेंच स्टार्टेड वाइंडिंग अप देयर ऑपरेशन, अब तो बोरिया बिस्तर बांधो। हैदराबाद कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश, ठीक है, क्योंकि हैदराबाद पे बस्सी उन्होंने फ्रेंच का था, फ्रेंच का था, खत्म हो गया। हाँ, आप डिपेंडेंट। अराइवल ऑफ क्राउन ट्रूप्स इन सिग्निफिकेंट नंबर, क्राउन ट्रूप्स मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड से जो ट्रूप्स आ रही थी, क्राउन ट्रूप्स मतलब इंग्लैंड की, लंदन की ट्रूप्स इंडिया में आने लग गई, ठीक है। अब ये लोग आगे का रास्ता क्लियर करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, है ना, एक्सपेंशन इंडिया का। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस है कि भाई इनको लड़ने के लिए, इन वॉर्स को लड़ने के लिए क्राउन ट्रूप बुलाया गया। वैल्यूबल लेसन्स फॉर द इंग्लिश, टेक एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, एग्जैक्टली, यहाँ से उनको पता चला कि भाई हम तो बहुत आसान है, इनको बस आपस में लड़ाते रहो, सब चीज़ें हो जाएंगी, अपने पास पावर है ही, पैसा भी आ ही रहा है, राइट। सो दिस इज द कॉन्सिक्वेंस। तो ये भी आप अपने से आप खुद भी सोच सकते हो, व्हाट डू यू थिंक, अगर आप सोचो तो व्हाट डू यू थिंक वन ऑफ द, इसके अलावा और क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, सोचो, मैं भी सोचता हूँ। The British also got to know that the regional powers are not competent enough. दिस इज द सेम वे, मतलब वी आर टेलिंग इट इन अनदर लैंग्वेज। और इसके अलावा Competitors eliminate हो गए। हाँ, कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट, ब्रिटिश गॉट एलिमिनेटेड ऑल द कॉम्पिटिटर्स, राइट, या ये भी हो सकता है। रास्ता क्लियर हो गया रास्ता clear हो गया, आगे के sole लिए, traders बचे, वो Sole traders। exploitators बचे। एग्जैक्टली, है ना। तो ये जो चीज़ें आप इसको कीवर्ड्स बोलते हैं, यू कैन राइट इट इन योर आंसर। और आप जब बुक पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्नेटिक वॉर, इट वॉज कंटिन्यूएशन ऑफ यूरोप्स एंग्लो फ्रेंच वॉर विच वॉज ट्रिगर्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ट्रू, इट एंडेड इन 1748 विद द ट्रीटी ऑफ राइसविक विच एंडेड द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, है ना। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सो 2 इज इनकरेक्ट, right? Treaty of Aix-la-Chapelle, right? The first European to introduce the practice of subsidiary alliance, British। ये duplex subsidiary alliance, He was trying Pioneer। to make it। yeah. Which among the following incidents established the supremacy of British? देखो मैंने बोला था ना, Battle of Monmouth। Battle of Monmouth, this was asked directly, ठीक है। I think this was the last slide, right? So we are exactly ended on at 1 p.m.